wave optics. Things are visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wave optics. जैसे कि मैंने बताया कि earlier this chapter there were two chapters, wave theory of light and interference and diffraction. ये दो चैप्टर थे पहले, अब दोनों को मिलाकर उन्होंने एक सिंगल चैप्टर बनाया है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स. कीप इट इन माइंड, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर एज एन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो मैं बोलूंगी कि ऑन द स्पॉट पढ़ते हुए जाओ और नोट्स भी ऑन द स्पॉट बनाते हुए जाओ. ओके, सो कुछ बेसिक्स रिवाइज करते हैं वेव ऑप्टिक्स पूरी तरीके से स्टार्ट करने से पहले. You know that there is a phenomena which explains you that your light waves always travel in a straight line. आपके जो light waves होते हैं वो हमेशा एक यूनिफॉर्म और होमोजीनियस मीडियम में, एक यूनिफॉर्म और होमोजीनियस मीडियम में, यूनिफॉर्म और होमोजीनियस का मतलब ये है कि जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स हो और ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो रहा हो. तो अगर एक लाइट वेव पास होता है, अगर एक लाइट वेव पास होता है तो इट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर बाहर आजू बाजू कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है तो दिस फिनोमिना एक्सप्लेन्स यू अबाउट समथिंग अबाउट द रे ऑफ लाइट. व्हाट इज दिस रे ऑफ लाइट कंसीडर्ड? ये है क्या? इन यूनिफॉर्म होमोजीनियस मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन द straight line and the path that light follows, that is the path of a light is called ray of light. जो path आपका light follow कर रहा है that is called as ray of light. These are some basic phenomena, basic definitions you have already studied in 11th standard, though I am revising. कुछ आपकी तरफ से भी पूछने की कोशिश करूंगी. The next phenomena जिसके बारे में हमने काफी बचपन से पढ़ा हुआ है, that is reflection of light. Reflection of light. इसके बारे में आपको पता है? What is reflection of light? आंसर करो जरा. What is reflection of light? And उसके लॉस क्या है? आंसर एवरीवन प्लीज, कोई भी एक आंसर करो. What is reflection of light? कैसे डिफाइन करोगे आप reflection of light को? Your light is reflecting means what? प्लीज एकदम शांत मत हो जाओ, कुछ बोलो. Coming back to Please explain. Traveling back of Bouncing back of light. When waves strike a surface, Bouncing back. it gets reflect back. Yeah, comes up in the same path. Exactly. जब कोई भी एक मीडियम को अपना लाइट स्ट्राइक करता है और रिटर्न बैक होता है टू द सेम मीडियम, that is what is we consider to the reflection of light. So if I consider this as an incident ray, okay, and this is the normal, and if I consider this as a reflected ray, okay, so according to the laws of reflection, first law of reflection, अगर ये एक स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पर और यहाँ पर that is angle of incidence and angle of reflection will be same. According to the first law of reflection of light, angle of incidence will be equal to the angle of reflection. Correct? दूसरी बात ये है कि all second law of reflection explains you that your normal, your incident ray and your reflected ray, they all will lie in the same plane. Normal, incident ray and reflected ray, हेलो they मिस. all lie in the same plane. बोलो. मिस, ये प्लेन का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? प्लेन इज जस्ट एन एरिया जिसमें आप देख रहे हो. आपको उसी पर्टिकुलर प्लेन में देखने के लिए, दिस इज द पेज, दिस इज द प्लेन. तो अगर मेरी कोई लाइट ऐसे आके गिर रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, मेरी आंखों पे आ रही, तो दिस इज माय पर्टिकुलर प्लेन. मैम मतलब प्लेन को हम अपने हिसाब से कंसीडर करते हैं कि हमारा इतना प्लेन है. हाँ, आप अपने हिसाब से कंसीडर करते हो. Plane is the It's that surface on surface which area that waves. you are observing. मैम प्लेन को एक सरफेस कंसीडर Okay. कर सकते हैं ना? कर सकते हो. दिस इज माय पर्टिकुलर प्लेन, ये मेरा प्लेन है जहाँ रिफ्लेक्ट हुए. Okay, so let's go ahead.
reflection of light. These were the two laws of reflection of light. Now the next phenomena is refraction of light. Refraction of light. Please give me the definition for refraction of light. This will check your knowledge. What is refraction of light? बताओ जरा. Ma'am, When when light- The ray phenomena light of deviation of refracting light Travels from one medium to another. from one medium to another. See, from one medium medium to another medium, refraction of light Bend- को define करता है. It bends from the bending. bending of the light. Exactly. Deviation. Bending is important. Reflection Uh, define करते समय you need to say that when a light goes from one medium to another medium, according to Bends. the given condition, it bends. Now, if it is going from rarer medium to denser medium, you know it bends towards the normal. हाँ. This is my normal. आपका रियल जो पाथ है वो ये होता है, बट जब लाइट अंदर एंटर करती है रेयर से डेंसर की तरफ, ये कुछ इस तरफ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल. So this bending of light will explain you the refraction of light. So when a light goes from one medium to another medium and it bends, this phenomena is considered to be your refraction of light. Now what are the laws of refraction of light? Laws बता सकते हो? What are laws of refraction of light? When Laws of incident reflection. हाँ. हम First वो law क्या है? sin I upon sin R एक वो की तो वैल्यू थर्ड लॉ है. कांस्टेंट रहती है. फर्स्ट लॉ क्या है? What is the first law? फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि this is the incident ray, this is the incident ray, this is your refracted ray, your incident ray, refracted ray and normal again lie in the same plane, but your incident ray and refracted ray, they are on the opposite side of the boundaries. ये आपका फर्स्ट लॉ बोलता है. फर्स्ट लॉ आपको ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे अगेन एक ही प्लेन में आते हैं, मतलब आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेंगे. बट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों बाउंड्रीज के अपोजिट साइड्स में मिलेंगे. जहां पर यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड्स में मिलते थे, यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बाउंड्री के अपोजिट साइड में मिलेंगे. ऑफ कोर्स नॉर्मल के भी मिलेंगे, बट बाउंड्री के भी अपोजिट साइड में मिलेंगे. दे विल बी नॉट इन द सेम मीडियम, इट विल पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ओके, नाउ द सेकंड लॉ, एज समवन सेड मी, दैट इज स्नेल्स लॉ, which gives the relation between your refractive index, जिसके ऊपर जिसके पास मैं आऊंगी, and we know that according to the second law, n1 sin of I is equals to n2 sin of R. इसके बारे में आपने काफी डीप में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. स्नेल्स ने बोला कि sin I by sin R is equals to sin I by sin R is equals to constant. is equals to constant, is equals to constant. और वो constant आगे जाके हमको पता चला कि it was refractive index. ये तो जो constant है ये आगे जाके पता चला कि it is refractive index. Okay, this was the Snell's law. That is the second law of refraction of light. Now let's go ahead with let's discuss about this constant. Let's discuss about this refractive index. मैम अगर आपको किसी ने, हाँ, वो फर्स्ट लॉ में दोनों में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले में यही डिफरेंस है कि मीडियम मतलब जो मतलब होते हैं अपोजिट, मीडियम में फर्स्ट वाला तो मीडियम में होएगा और सेकंड वाला अपोजिट मीडियम्स में रहेगा ना. हाँ, इसी तरीके से तो आप रिफ्रैक्शन को डिफाइन ही करते हो. ओके. In this way only you define the refraction. हाँ मैम. एक मिनट. हाँ, okay, let's go ahead with a new that is with a constant. जो हम constant define करते हैं, वो constant exactly है क्या? You know that what is that constant? That constant is actually your refractive index. वो जो constant है वो आपका refractive index है. अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि अगर समझो आपके एक वाइवा में, see we always learn the definitions learn करना is not physics. Physics is something which you understand, which you realize कि हाँ सच में ये मेरे आजू बाजू में एग्जिस्ट करता है. आप किसी चीज को देखते हो, आप रिलेट कर सकते हो कि मैंने ये चीज देखी है, मैंने ये चीज पढ़ी है, तब आप फिजिक्स को रिलेट करते हो. विच आई फील अगर आप सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, एच.सी. वर्मा रीड कर रहे हो, that will not give you knowledge about physics.
फिजिक्स इज समथिंग जब आपने कोई चीज पढ़ी है और आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, आपको दिमाग में आता है क्योंकि मैंने ये पढ़ी है। ओके, सो इफ आई वांट टू डिफाइन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको अगर किसी ने पूछा कि मुझे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब बताओ, तो क्या बताओगे? प्लीज आंसर। Bending of light from one medium to another. पूछा जाता, व्हाट इट इज अगेन? Bending of light from Light. one medium to another while passing from one medium to another. मिस वो तो बेंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना हो गया। आपको तो सीधा वाइवा वाला पर्सन यही बोलेगा, फिर मिस रिफ्रैक्शन क्या है? एक मीडियम से किसी और मीडियम में जाने के बाद जो लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है ना, मतलब वो जिस अमाउंट से कम होती है वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो रेशियो। एग्जैक्टली, ये तो हाँ, आपका मैम। डेफिनेशन हो गया। दिस इज द डेफिनेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे आपको Ratio, समझता क्या है? sine function. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आपने जो बताया दैट इज वेरी करेक्ट सौरभ, कि जब कोई एक लाइट जब ये लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी स्पीड में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, और जब आपकी स्पीड में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, यू से दैट कि वो जो चीज है, वो जो रेशियो है, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफाइन करते हैं। बट एग्जैक्टली आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या समझा रहा है? व्हाट इट एक्सप्लेन्स यू, क्या समझाता है आपको? मैम लाइट कितना बेंड होगी वो समझा रहा है। लाइट कितना बेंड होगी वो समझा रहा है, ठीक है। इट्स दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक एक तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने का, कि ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो लाइट बेंड होगी, फाइन। और कुछ? वो हाँ मिस, एक मटेरियल मतलब किस हद तक चेंज कर सकता है लाइट के स्पीड या उसके। ये बालाजी का जो आंसर था, दिस वाज क्वाइट करेक्ट। आपको जब किसी छोटे बच्चे को पढ़ाना है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आपको कोई छोटा बच्चा आके पूछता है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप उसको बेंडिंग समझाओगे, वेलोसिटी का स्पीड समझाओगे, तो उसको नहीं समझेगा। तो एक सबसे सिंपल फिनोमिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, कि कोई भी मीडियम कितना अलाउ कर रहा है अपने अंदर से लाइट को पास आउट करने के लिए। अगर वो ज्यादा अपोजिशन क्रिएट कर रहा है उस वेव को, मींस वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू व्हाट यू विल फाइंड, कि अगर अपोजिशन क्रिएट कर रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। ओके, वेलोसिटी कम होती जाएगी मींस अगर आपको किसी को सिंपल टर्म्स में समझाना है तो यू कैन सिंपली से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अलाउंस टू द लाइट। कितना अलाउ कर रहा है आपका पर्टिकुलर मीडियम किसी लाइट को अंदर आने के लिए, किसी वेव को अंदर आने के लिए, ठीक है। हम उसको वैक्यूम से कंपेयर करते हैं क्योंकि वैक्यूम में बिल्कुल अपोजिशन नहीं होता, देयर इज नो अपोजिशन इन द वैक्यूम। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड जो है वैक्यूम में पाई जाती है। ये चीज बहुत आगे जाके प्रूफ हुई है। जब स्टार्टिंग में लाइट के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ, तब कोई भी ये बात कंसीडर नहीं करता था कि वैक्यूम में लाइट इज फास्टेस्ट। ओके, ये सारे फिनोमिना आगे जाके क्रिएट हुए हैं। So in starting, if you want to explain what is refractive index, simply बोलेगा कितना कोई मीडियम अलाउ कर रहा है मेरे वेवलेंथ को अंदर आने के लिए, मेरे वेवलेंथ को कितना वो अलाउंस दे रहा है, दैट इज व्हाट डिफाइंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वो बिल्कुल अपोजिशन क्रिएट नहीं कर रहा है, मतलब मेरा जो भी वेव आ रहा है उसका स्पीड अगर वो बिल्कुल अपोजिशन क्रिएट नहीं कर रहा है, मेरा स्क्रीन हैंग हो गया है क्या? हाँ It is happening today again and again. मैम आप लिख रहे हो क्या? I was about to write something, but it was freezed, I think so. Let's try to. आपके लाइट को अंदर आने के लिए that is what defines the refractive index. अगर वो मेरे वेलोसिटी को बिल्कुल, जैसे कि आपने एक दूसरा तरीका बताया, मैं इस वेलोसिटी के हिसाब से डिफाइन कर सकता है, करेक्ट है। वेलोसिटी के हिसाब से ही उसका परफेक्ट डेफिनेशन आता है। ओके, अगर वो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल अपोजिशन क्रिएट नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी बहुत हाई होगी, ठीक है। ऑफ कोर्स नॉट इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट, बट फिर भी एज कंपेयर टू हाई होगी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू विल फाइंड दैट कि इट इज द रेशियो। आप फिर उसको कंपेयर करना शुरू करते हो कि अगर मैं वैक्यूम से मैं मेरे स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करूं, जहां पर मेरा स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा पाया गया, अगर जब मैं वैक्यूम से मेरे वेलोसिटी को कंपेयर करता हूं मीडियम के, दैट गिव्स मी अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज द करेक्ट। सो आप एक शॉर्ट वे में, अगर आपका टीचर डेफिनेशन नहीं सुनना चाहता तो सिंपली आप एक स्टेटमेंट पास कर सकते हो, मेरा पर्टिकुलर मीडियम कितना अलाउ कर रहा है। अगर वो ज्यादा अपोज कर रहा है तो मेरा जो भी वेव होगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। अगर वो कम अपोज कर रहा है, मेरा जो भी वेव होगा वो इजीली निकल जाएगा। Clear with the part? So this is what the basic way to define a refractive index. हेलो मिस, कि अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाना है तो ओके बोलो।
मैम वेव हर चीज को पेनिट्रेट कर सकता है? डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वेवलेंथ की बात कर रहे हो। नहीं मतलब सारे एकदम वेवलेंथ पेनिट्रेटिंग नहीं होते और कुछ वेवलेंथ बहुत ही हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। तो मैम जो हाईली पेनिट्रेटिंग वेवलेंथ होते हैं वो मतलब हर जगह पेनिट्रेट हो सकते हैं? हाँ, हार्डेस्ट मटेरियल में पेनिट्रेट हो सकते हैं। आपने पेनिट्रेशन, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर जाके देखो, वहां पे आपको हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग वेव्स के बारे में बताया गया है, एंड दोज आर नॉट गुड फॉर द बॉडी। आपका जो स्कैनिंग वगैरह होता है, जो आपकी बॉडी में आपके बोन्स वगैरह को एक्सरेज वगैरह किया जाता है, उनका रिफ्लेक्शन और पेनिट्रेशन के हेल्प से ही फाइंड आउट किया जाता है, एंड दिस पेनिट्रेशन इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। आपका जो मेटल डिटेक्शन होता है, वो सारी चीजें रिफ्लेक्शन और पेनिट्रेशन के हेल्प से ही की जाती है। सो there are many waves which can penetrate inside your body according to the wavelengths. Okay, let's go ahead. How it depends on wavelength, we'll understand from this topic. Okay, so we start comparing it with the vacuum. हम उसको vacuum से compare करना start करते हैं. When we start comparing with the vacuum, we know that the highest speed in the vacuum is 3 into 10 raised to 8 meter per second. This is the velocity of light in the vacuum, 3 into 10 raised to 8 meter per second. और आपकी velocity कितनी है उस particular medium में? अगर समझो, let us consider कि you are in the air. एयर में आपकी ऑलमोस्ट वेलोसिटी 2 into 2.99 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब यू कैन से कि म्यू इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। म्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। इसीलिए नॉर्मली जब आप एयर में भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप क्या बोलते हो कि लेट अस टेक दिस 2.99 लेने से अच्छा वी विल टेक 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड ओनली। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन दैट हाउ मच अलाउंस योर मीडियम इज डूइंग और गिविंग टू योर वेवलेंथ टू पेनिट्रेट और टू go through it, to pass through, to propagate through it. Clear with the part? Now, there are certain ways. Of course, this refractive index, this particular refractive index, it depends upon the size of the wave. ये refractive index जो होता है, ये wave के size पे depend करता है। अगर आपके wave का wavelength बहुत बड़ा है, एक simple सा फंडा है, इस तरीके से याद रख सकते हो कि if I am working in an institute, मैं किसी एक ऑफिस में काम कर रही हूँ, I am working in an institute, ठीक है, I am the wave, और नहीं, let us consider the people who are working inside are the waves. उनका जो पोस्ट है, जो उनके स्टेजेस है, are the wavelengths. wavelengths है, मतलब if I am a teacher, someone is in charge, second in charge, main in charge, different people are there, ठीक है, तो उनका जो पोस्ट है, that post, that status is the wavelength, and that person is a wave. That person is a wave. Wave का I'm just considering to explain you something. मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि how this refractive index depends upon the size of the wavelength. ये refractive index size of the wavelength पे कैसे डिपेंड करता है, वो चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसको जस्ट एक एग्जांपल की तरह लिया है मैंने, प्लीज उसको ऐसा कुछ कनेक्ट मत करो मैम कैसे हो गया, ये एग्जांपल ले रही हूँ तुमको समझाने के लिए। एक ऑफिस एक मीडियम है, प्लीज हियर, ऑफिस एक मीडियम है, जिस मीडियम में कोई दूसरा एग्जांपल लो ना। नहीं, इसी एग्जांपल से समझो। ऑफिस एक मीडियम है और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं दे आर वेव्स, ठीक है, और उनका स्टेटस इज योर वेवलेंथ। उनका जो साइज है दैट इज द, उनका जो स्टेटस है वो वेवलेंथ है। अब ये जो मीडियम है, प्लीज लेट मी कंप्लीट। अब ये जो मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम किसी भी वेवलेंथ को कब अलाउ कर सकता है, कब उसकी कितनी उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट पर्सन जिसका वेवलेंथ इज वेरी हाई, जिसका स्टेटस इज वेरी हाई, इज द इंचार्ज। सेकंड इज द टीचर एंड थर्ड इज द स्टूडेंट। ओके, अब ये जो मीडियम है, सिंस इसका स्टेटस बहुत हाई है, इसका साइज बहुत बड़ा है, ये मीडियम इसको ज्यादा अपोजिशन क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये जब चाहे ऑफिस में अंदर आ सकता है, जब चाहे ऑफिस से बाहर जा सकता है। मींस इसकी स्पीड को ये मीडियम कंट्रोल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट्स साइज। दिस इज व्हाट हैपेंस इन योर प्रिज्म। जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, जिसका साइज बहुत ज्यादा होता है, आपका मीडियम उसकी वेलोसिटी को बहुत ज्यादा अपोज नहीं कर पाता, वो फटाक से आराम से वो बाहर निकल जाता है। और वहीं पर जो छोटे मीडियम वाले, अब
इनके कंपेयर में टीचर इज एट स्मॉल लोअर लेवल. यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिशन क्रिएट होगा. ओके, अकॉर्डिंग टू माय टाइम आई विल कम, अकॉर्डिंग टू माय टाइम आई विल गो. बट स्टूडेंट्स के लिए देयर इज अ स्ट्रिक्ट इम्पोजिशन. ओके, सो ये जो मीडियम अपोजिशन क्रिएट करने वाला है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस ऑफ दिस पर्सन एंड साइज ऑफ द वेवलेंथ. जिसका वेवलेंथ बहुत बड़ा, उसको आपका मीडियम बिल्कुल अपोज नहीं कर पाता, वो अपनी स्पीड के साथ बाहर निकल जाता है. जिसका साइज बहुत छोटा छोटा होते जा रहा है, वैसे वैसे उनके ऊपर जो इम्पोजिशंस है, जो अपोजिशन है, वो बढ़ती जा रही है. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द प्रिज्म. जब प्रिज्म में से आप लाइट को अंदर पास करते हो, योर व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स. ठीक है. बट जो रेड लाइट होती है, उसका वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है. रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है. रेड टू वायलेट यू कैन सी, दैट इज द विजिबल रेंज. रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे बड़ा होने की वजह से ये जो प्रिज्म है, ये इसकी स्पीड को ज्यादा अपोज क्रिएट नहीं कर पाता, और ये जो रेड लाइट है, ये सबसे पहले बाहर निकल जाती है. इसका वेवलेंथ इज हाईएस्ट. सबसे लास्ट में आपको वायलेट देखने के लिए मिलता है. सबसे लास्ट में आपको वायलेट देखने के लिए मिलता है. सेम हैपेंस विद द स्काई. जब सनसेट या सनराइज होता है, आप रेड कलर ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि रेड कलर इजीली प्रोपगेट हो जाता है, बाकी सारों को अपोजिशन मिलता है. ये जो है, ये स्प्रेड हो जाता है, स्कैटर हो जाते हैं. आपको ये पर्टिकुलरली इसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से, साइज बड़ा, ये आराम से आप तक पहुंच जाता है. सो साइज जितना बड़ा होगा, मीडियम से अपोजिशन उतना कम होता है, और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है. So that is the reason you can see a rainbow. This is the particular reason. ये जो आपका व्हाइट लाइट प्रिज्म से निकलकर अलग अलग लाइट्स में डिवाइड होता है, this phenomena is, what is this phenomena called? इस phenomena को क्या बोलते हैं? इस phenomena का क्या नाम है? नाम बताओ. व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्रेड होती है. What is this phenomena called as? Dispersion. Exactly, it's a dispersion of light. Dispersion of light. ये डिस्पर्शन हो क्यों रहा है, अब आपको समझा होगा. क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग पोजीशन मिलती है. जो सबसे हाई वेवलेंथ है, जो इंचार्ज है, जो बड़ा है, उसको आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वो अपनी स्पीड के साथ बाहर निकल जाता है. या रेस्ट्रिक्शन लग रहा भी है तो स्मॉल अमाउंट लगेगा बाकी के कंपेयर में. इसलिए सबसे पहले आपको रेड लाइट देखने के लिए मिलती है. अपोजिशन कम मिलेगा ना. हाँ, और वेलोसिटी साइज हाई जितना होगा, बड़ा, अपोजिशन उतना कम मिलेगा. और वेलोसिटी उतना ही ज्यादा ना. एग्जैक्टली, क्योंकि आप उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते. हाँ. आई कैन नॉट कंट्रोल द इंचार्ज ऑफ द क्लास. दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट. इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल लिया कि यू कैन अंडरस्टैंड कि जितना बड़ा स्टेटस, जितना बड़ा वेवलेंथ, आप उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते. आपका मीडियम उसकी स्पीड को ज्यादा अपोज नहीं कर सकता, वो आराम से बाहर निकल जाएगा. इसीलिए आप डिस्पर्शन देख पाते हैं. इससे मुझे ये समझाना था कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है. स्टार्टिंग में पहले तो आपने डेफिनेशन बता दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि मैम वी कैन सिंपली डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द C/V. क्या नहीं समझा अमन? ऐसा क्या नहीं समझा? आपको समझाओ जरा. मैंने ऐसा क्या बता दिया? वेवलेंथ ऑफ मिस, वेवलेंथ का और वेलोसिटी का जो आपने बोला ना मिस, वो नहीं समझा. सिंपल सा फंडा है कि ये, पहली बात तो ये सारी चीज आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज माय टॉपिक टू एक्सप्लेन. वो नहीं, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाया है समझाने का. आपको पता है कि वेवलेंथ और आपके लैम्डा के बीच में रिलेशन है, V = n लैम्डा. ओके, अब मैं आपको मैथमेटिकली समझा रही हूँ. जब आपका कोई भी चीज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. ये आपने पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आता. ठीक है. तो अगर लैम्डा बड़ा है तो ऑफ कोर्स उसका वेवलेंथ क्या, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा हाई होगी. फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट. हाँ मिस. दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन. तो मैं सिर्फ इतना बोल रही थी कि जिसका साइज बड़ा होता है, उसकी वेलोसिटी बहुत फास्ट होती है, और आप फास्ट वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट कंट्रोल द फास्टेस्ट वेलोसिटी. आप लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंट्रोल इट. आप पकड़ नहीं सकते उसको, आप अपोज नहीं कर सकते ज्यादा. समझ में आया? So, मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझा रही थी कि आप कैसे याद रखोगे कि व्हाई रेड लाइट इज कमिंग फास्टेस्ट आउटसाइड. क्या किस चीज पे आपका जो वेलोसिटी है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है. मैं ये बता रही थी कि ये जो, जब ये पर्टिकुलर सारी की सारी लाइट, ये जो व्हाइट लाइट है, जब ये व्हाइट लाइट इसमें से पास होती है, यही प्रिज्म का मीडियम, यही प्रिज्म के जो सब्सटेंस है, वो अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए वो अलग अलग अपोजिशन क्रिएट करते हैं.
दे क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट अपोजिशन, जिसमें रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से, इसका लैम्डा, इसका साइज सबसे ज्यादा होने की वजह से, ये अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, अंदर के जो सब्सटेंस है, ये इसके ऊपर ज्यादा अपोजिशन क्रिएट नहीं कर पाते। एक सिंपल सा लाइफ का फिनोमिना है कि अगर कोई बहुत छोटी सी चींटी है सामने और बहुत बड़ा हाथी है, हाथी बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है, चींटी उसको बहुत ज्यादा रोक पाएगी क्या? नहीं रोक पाएगी, इट विल रन आउट। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ये आपका सिंपल फिनोमिना है जो आप रियल लाइफ में देखते हो, कुछ अलग नहीं देखने के लिए मिल रहा है। जिसका साइज वेव का बहुत बड़ा है, जिसका साइज वेव का बहुत बड़ा है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से व्हेन इट पासेस थ्रू द मीडियम, जो बाकी कलर्स के लिए, जो बाकी वेवलेंथ के लिए अपोजिशन मिलने वाला है, उसके कंपेयर में सबसे कम अपोजिशन आपके रेड लाइट को मिलेगा बिकॉज ऑफ इट्स साइज। हेलो मिस। हाँ बोलो अमन। मिस ऐसे तो रेडियो वेव का वेलोसिटी ज्यादा होगा गामा रे से। हाँ, ओके it happens, but that depends upon the frequency also, what frequency you are taking. अगर सेम Okay, फ्रीक्वेंसी, हाँ, सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर आप रख रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको वेवलेंथ अलग अलग लेना पड़ेगा, दोनों का वेवलेंथ विल नॉट बी, इसीलिए तो रेडियो वेव और गामा वेव को सेपरेट किया गया। क्यों रेडियो वेव, ये जो रेडियो वेव, गामा रेज, एक्स रेज आपने जो बनाए हैं वो उनके साइज के बेसिस पे तो बनाए हैं, वेवलेंथ के बेसिस पे ही बनाए हैं, और उन वेवलेंथ पे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम पढ़ते हैं। दे ऑल आर वेव्स, एक्चुअली योर होल वर्ल्ड इज अ वेव, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, और कुछ है ही नहीं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया ही आपकी वेव, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। अगर आप इस टर्म में समझना स्टार्ट कर दो तो यू हैव लर्न फिजिक्स, ऐसा हो जाएगा। योर होल वर्ल्ड, योर मास इज अ वेव, योर mass is an energy, it creates a wave, everything is a wave, energy and frequency, that's all. You can study everything in wave, frequency and energy. भी वेव, हम भी वेव, सब वेव। Exactly, we create waves, आगे जाके आप पढ़ोगे, it's in quantum mechanics, but हमारा साइज बड़ा होने की वजह से वेव बहुत अलग लेवल का क्रिएट होता है। I'm not going to that topic please, but still try to understand that red light पहले आने के पीछे इतना ही रीजन है कि उसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, आपका मीडियम उसको अपोजिशन क्रिएट नहीं कर पाता ज्यादा, इसकी वजह से आपको रेड लाइट इजीली दिखाई देती है एज कम्पेयर टू द अदर लाइट्स। इसीलिए आपके जो नॉर्मल, अब तो रेडियम का यूज किया जा रहा है, पहले जो डायरेक्शंस वगैरह दिखाए जाते थे वो रेड कलर से दिखाए जाते थे। आपका जो एम्बुलेंस के ऊपर का जो ये बचता है, अब तो बंद कर दिया गया, सिर्फ एम्बुलेंस को दिया जा रहा है, जो ये बचता है ऊपर की तरफ, व्हाट इज दैट साउंड, दैट साउंड क्रिएट्स, हाँ, उसके अंदर रेड कलर का लाइट का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ इतना हाई होता है कि दूर से भी अगर उसको कोई देख रहा है तो दे कैन इजीली ऑब्जर्व कि समथिंग इज कमिंग। ओके, सो रेड लाइट को यूज करने का मेन रीजन यही होता है कि उसका वेवलेंथ बहुत हाई होता है, तो मीडियम ज्यादा अपोजिशन उसके ऊपर क्रिएट नहीं कर पाता, वो इजीली प्रोपोगेट कर जाता है। ओके, हाँ, एम्बुलेंस का भी रेड यूज करते हैं मेरे हिसाब से, मैंने रेड देखा है। वॉयलेट पूरी तरीके से नहीं होता, इट इज समवेयर ब्लू इन कलर, वॉयलेट नहीं होता पूरी तरीके से, इट्स नॉट वॉयलेट इन कलर, प्योर वॉयलेट नहीं होता, इट्स नॉट वॉयलेट, ब्लू कलर में देखा है मैंने। सो प्योर ब्लू कलर का यूज करता है, वॉयलेट कलर का यूज नहीं करते हैं। हाँ, इसमें भी उन्होंने कलर इसलिए चेंज किया हो क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ इज वेरी हाई, तो कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हो, दैट कैन बी द फिनोमेना, बट रेड लाइट का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसको अपोजिशन ज्यादा क्रिएट नहीं होता मीडियम से, and it can easily propagate. So I want to explain, let's go ahead with the characteristic of a refractive index. Mu is equals to C by V, that is the definition of course, that is we are comparing the speed of the wave of in a particular medium with respect to vacuum. ये चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि how we are defining with respect to vacuum. Okay, दूसरी चीज हमने ये देखी कि मेरा जो refractive index है, जो opposition है, it depends upon the wavelength. वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है आपके वेव के। ओके, अब हायर साइज के लिए अपोजिशन कम होती है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। लोअर साइज के लिए ऑफ कोर्स अपोजिशन बढ़ जाता है, वेलोसिटी एज कंपेयर टू कम होने लग जाती है। सो दिस रिजल्ट्स इनटू द रेनबो फॉर्मेशन, और यू कैन also consider that it is this phenomena is resulting into dispersion of light and rainbow formation. ओके, सो आपका म्यू जो है, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो पूरी तरीके से वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको वैक्यूम और मीडियम में नहीं मिलेगा, आपका म्यू का वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 और इट विल करस्पॉन्ड टू 1। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको म्यू का वैल्यू 0 पॉइंट में आए,
इन दिस कंडीशन, जब आप वैक्यूम से मीडियम को कंपेयर कर रहे हो, वैक्यूम से मीडियम, दिस म्यू कैन बी 0.9, कीप इट इन माइंड, ये आ सकता है, बट जब मैं वैक्यूम से कंपेयर कर रही हूँ, मैं तब की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जब मैं वैक्यूम से कंपेयर कर रही हूँ। और ये यही चीज समझाता है कि वैक्यूम में सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है लाइट की। वैक्यूम में लाइट की स्पीड इज द मैक्सिमम स्पीड अ लाइट और एनी ऑब्जेक्ट कैन टेक, दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। म्यू इज इक्वल्स टू 1 0.9, ये नहीं समझा 1। ठीक है, मैं वो टॉपिक आगे क्लियर करती हूँ, लेट इट बी। ये चीज आपको समझी, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ कैन यू कैन डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज स्पीड इन अ वैक्यूम विद and speed, it is the ratio of speed in a vacuum to the speed in a medium. नहीं मिस, रेशियो वाला नहीं समझा। क्या रेशियो वाला नहीं समझा? मैं मतलब आपने जो पहले बोला था ना कि कितना वो अंदर जा सकता है, कैसे, वो सब समझा। ये C/V वाला कंसेप्ट नहीं समझा। ये कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। आप लोग ऐसे बैठे हुए हो जैसे 11th स्टैंडर्ड आपने ऑप्टिक्स के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। म्यू इज द रेशियो ऑफ, ओके फाइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने जैसे कि आपको बताया कि अपोजिशन पे डिपेंड करता है। देयर आर 2 काइंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है योर समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब समझाती हूँ कि ये क्या है। अब अपोजिशन के बारे में आप किस टर्म में डिफाइन कर सकते हो? वेवलेंथ के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। वेवलेंथ तो आप देख नहीं सकते, वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी के टर्म में आप डिफाइन करते हो। तो व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जब आप एक मीडियम को, अदर देन वैक्यूम, एक मीडियम को जब आप दूसरे मीडियम, एक मीडियम की वेलोसिटी को, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, किसी फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी से आप दूसरे मीडियम की वेलोसिटी को कंपेयर करते हो, एक मीडियम से, मीडियम 1 टू मीडियम 2, अदर देन वैक्यूम। जब आप दो मीडियम को, फॉर एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल ग्लास एंड वाटर, आपकी लाइट जो है किसी ग्लास से पानी के अंदर घुस रही है, तो दिस इज वन मीडियम, दिस इज अनदर मीडियम। जब आप इन दोनों मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आप ग्लास के वेलोसिटी के कंपेयर से, वेलोसिटी ग्लास के अंदर जो वेलोसिटी है और वाटर के अंदर जो वेलोसिटी है, जब इन दोनों का आप रेशियो निकालते हो, दैट इज गिविंग योर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यू आर रिलेटिंग, आप रिलेट कर रहे हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम को। सो वहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, वहां पे जो वेलोसिटी की रेशियोस निकलती है, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ऊपर भी तो रिलेटिव ही है। अगर आप वहीं पर वैक्यूम से, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से आप किसी मीडियम को डिफाइन करते हो, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी मीडियम को देख रहे हो, सो दैट इज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो जब मीडियम से मीडियम करो अदर देन वैक्यूम, दैट इज योर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जहां पर आप वैक्यूम टू मीडियम करोगे, दैट इज कंसीडर्ड टू बी योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। क्लियर? और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ओके आयुष, ये जो आपने बोला कि मिस हमको ये समझा नहीं कि आपने ये जो C/V कैसे लिया, ये डिफाइन करने का तरीका ही है। ये C से मीडियम में क्यों वेलोसिटी V हो गई? क्योंकि कुछ अपोजिशन की वजह से आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो V कुछ अमाउंट से चेंज हुई है। तो ये जो रेशियो होता है चेंज का, दैट गिव्स योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसको वैक्यूम से क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि वैक्यूम में सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है लाइट की, उसको आप अपना ओरिजिन कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट बिल्कुल अपोजिशन नहीं होता है, वो होता है वैक्यूम। तो उसके कंपेयर में मेरे मीडियम ने कितना अपोजिशन क्रिएट किया है, उसको हम इस रेशियो से डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इन वैक्यूम योर स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, एंड इन मीडियम योर स्पीड ऑफ लाइट इज, लेट अस कंसीडर 2.99। मतलब वैक्यूम में 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड से चलता है और आपके मीडियम में 2.99 से चल रहा है, मतलब कुछ तो अमाउंट ऑफ वेलोसिटी कम हुई है। ये अमाउंट ऑफ वेलोसिटी कम हुई है मतलब मेरे मीडियम ने कुछ ना कुछ अपोजिशन तो क्रिएट किया है। सो ये जो वेलोसिटी चेंज होती है वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, ये जो वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज हाउ वी कैन डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं।
ओके तो जब हम वैक्यूम से विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम डिफाइन करते हैं, वी से दैट इट इज एन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब हम मीडियम टू मीडियम डिफाइन करते हैं, वी से दैट इट इज एन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर विद द पार्ट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये 2 टाइप्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझे तो सबको? ये सारी चीजें रिवीजन है आपके 11th स्टैंडर्ड की, आपने सारी चीजें की हुई हैं। मैं सिर्फ एक शॉर्ट रिवीजन ले रही हूँ क्योंकि सम सॉल्व करते समय मुझे हर चीज की जरूरत पड़ने वाली है। बोलो। मैम 2 मीडियम को कंपेयर किया तब हम लोगों ने रिलेटिव बोला। हाँ तो इधर भी वैक्यूम और एक मीडियम को कंपेयर किया, वैक्यूम भी तो एक मीडियम ही है ना मैम? हाँ, बट वैक्यूम एक आपका बहुत ही ओरिजिन मीडियम है, मतलब दिस इज द मीडियम जिससे ज्यादा आप स्पीड कहीं पर भी क्रिएट नहीं कर सकते। दिस इज द मीडियम जहाँ पे आपको सबसे हाईएस्ट स्पीड मिलती है। तो जब आप इससे कंपेयर करते हो, यू गेट एग्जैक्टली कि हाउ मच चेंज इज देयर। यहाँ पे तो मीडियम टू मीडियम चेंज हो रहा है, तो दैट डिपेंड्स, आप डेंसर टू रेयर देख रहे हो, रेयर टू डेंसर देख रहे हो, दैट गोज ऑन चेंजिंग। बट यहाँ पे दिस इज द, यू कैन से दिस इज स्टैंडर्ड वन, ये स्टैंडर्ड वन है। अगर कभी आपको ऐसा कुछ बोल दिया कि म्यू ऑफ अ ग्लास इज 1.5, म्यू ऑफ अ ग्लास इज 1.5, सिंपली अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि ओके जरूर कहीं ना कहीं इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वैक्यूम के कंपेयर में कैलकुलेट किया गया है। तो जब आपको ऐसा कुछ देता है ना, तो वो वैक्यूम के कंपेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि वैक्यूम के कंपेयर में जो हाईएस्ट स्पीड होती है उससे कितनी कम हुई है। ये तो कुछ भी हो सकता है ना, मीडियम 1 टू मीडियम 1 तो कोई भी स्पीड हो सकती है, कोई भी रेशियो आ सकता है। मतलब ये वैक्यूम केस में किया तो 1 पॉइंट्स में आंसर आता है? हाँ, वैक्यूम में लिया तो 1 पॉइंट में। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में सबसे हाईएस्ट होता है। ये नीचे वाला पार्ट कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर डिनोमिनेटर बड़ा नहीं हो रहा है तो मतलब आपका 0 पॉइंट में आंसर जाएगा ही नहीं। जाएगा वही नहीं। चीज मैं ऊपर समझा रही थी। सो ओके, हियर हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम से मीडियम कंपेयर किया जाता है, मीडियम टू मीडियम, वेलोसिटी इन मीडियम ऑफ 1 टू द वेलोसिटी इन मीडियम ऑफ 2। मैम अगर मेरे को दे दिया ग्लास का समझो 1.5 तो मेरे को डायरेक्ट समझ जाना चाहिए ना कि उसको वैक्यूम से कि वो कंपेयर किया। एब्सोल्यूट के टर्म में बात कर रहा है, अदरवाइज वो आपको बोलेगा। मैं उस टॉपिक पे भी आ रही हूँ। एब्सोल्यूट में हमने देखा कि योर म्यू इज कंपेयर्ड वेलोसिटी इन वैक्यूम to the velocity in medium, and of course keep it in mind कि ये 0 से नीचे नहीं जाने वाला, this will never go below 0, हो नहीं सकता। लास्ट आपके एयर है, that is 1, जिसको हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बट अप्रोक्सीमेटली कभी भी ये जो नीचे का मीडियम है ये ऊपर से बड़ा हो नहीं सकता, आज तक नहीं पाया गया। आइंस्टाइन ने तक प्रूव कर दिया कि हाईएस्ट स्पीड इज इन वैक्यूम, और इतनी स्पीड से आज तक कोई चीज नहीं चल पाई है। अप्रोच कर सकता है लेकिन अप्रोच भी, हाँ अप्रोच भी एक्चुअली सिर्फ एयर में कर पाता है, बाकी सारी चीजों का स्पीड ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसका इंफिनिटी होगा? अमन क्या बोल रहा है? इंफिनिटी होगा? किसका इंफिनिटी होगा? इंफिनिटी कभी नहीं होगा। इंफिनिटी वर्ड, हाउ यू कैन डिफाइन इंफिनिटी? इंफिनिटी क्या होता है? मीन्स जहाँ पे अपना ये रुक जाएगा 1/0। ऐसा कभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप किसी वेव को किसके अंदर से पास करोगे तो वेव कहीं ना कहीं कुछ, देयर इज ऑलवेज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कुछ ना कुछ अमाउंट तो पेनिट्रेट होने ही वाला है, कुछ ना कुछ अमाउंट तो जाएगा ही। इंफिनिटी जैसा कोई डिफिनेशन नहीं होता, एंड इंफिनिटी इज समथिंग व्हिच इज नॉट इटसेल्फ डिफाइंड। वो क्या किसी चीज को डिफाइन करेगा? ओके हाँ, बोल सकते हो कि 0 हो रहा है, मतलब आप बोल सकते हो कि अप्रोचिंग टू 0 हो रहा है, बट यू कैन नॉट से इट इज 0। आप पूरी तरीके से किसी चीज को स्टॉप नहीं कर सकते। इट्स एन एनर्जी, हाउ कैन यू स्टॉप एनर्जी? हाउ कैन यू स्टॉप एनर्जी इफ समथिंग इज मूविंग? हाँ बोलो बोलो। 0 लाइक पांडे जी, किसी में 0 नहीं होने वाला, कीप इट इन माइंड। इट इज नेवर गोइंग टू बी 0। आप भले अपने कंसिडरेशन के लिए ले लो, बट इट इज नेवर गोइंग टू बी 0। आप एनर्जी, इतनी हाई स्पीड एनर्जी को आप कंट्रोल कैसे करोगे कि उसकी स्पीड एकदम 0 कर दो? 0 नहीं कर सकते आप। मीन्स कोई भी मीडियम में 0 नहीं होगा? नहीं होगा, सम अमाउंट विल ऑलवेज पेनिट्रेट।
और उसका वेलोसिटी जीरो करने का मतलब तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है? तुम बता सकते हो? जीरो बोल रहे हो मतलब क्या एक्सपेक्ट में तुम जीरो बोल रहे हो? मतलब कैन दुनिया यू कंट्रोल द स्पीड ऑफ लाइट? समझ गया। ये क्वेश्चन ही बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी जा रहा है। हाँ तो यू हाँ कैन नॉट यूज दिस वर्ड कि मैम इनफाइनाइट जैसा कुछ नहीं, कुछ होगा क्या, क्योंकि वो इटसेल्फ डिफाइंड नहीं है। लेट्स गो अहेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ने का और लिखने का एक तरीका होता है, प्लीज जरा उसको समझो। पहले एब्सोल्यूट के बारे में बता रही हूँ, अगर समझो सिर्फ ऐसा दे दिया म्यू जी इज इक्वल्स टू 1.5, इसका मतलब ये है कि यू हैव सीन दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जो विथ रिस्पेक्ट टू होता है वो हमेशा आगे आता है। तो जब वैक्यूम या एयर होता है तो वो लोग आगे कुछ नहीं लिखते। कभी कभी आपको ऐसे थोड़ा सा खुश करने के लिए लिख भी देते हैं, समझ में आ रहा है? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लर्न करने का या रीड करने का एक तरीका होता है, लिखने का एक तरीका होता है। अगर आपका ऐसा कुछ लिखा है कि म्यू जी इट सिंपली मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। कभी कभी वैक्यूम या एयर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो लोग आगे कुछ नहीं लिखते और कभी कभी खुश होकर लिख भी देते हैं। सो जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो उसको हमेशा आगे रखा जाता है। आप जिसके रिस्पेक्ट में, जो आपका रिस्पेक्ट है, जिसके रिस्पेक्ट में आप देखने वाले हो, जो आपका ओरिजिन है, जहां से आप कंपेयर करने वाले हो या जिससे आप कंपेयर करने वाले हो, उसको हमेशा आगे लिखा जाता है। और जिसको आप कंपेयर करने वाले हो उसको हमेशा पीछे रखा जाता है। ऑफ कोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्सन को किसी बड़े पर्सन से ही डिफाइन किया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी बच्चे को बोल रही हूँ कि बी लाइक एन और ट्राई टू फॉलो एपीजे सर, तो इसका मतलब ये है कि आई एम गिविंग रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन कि प्लीज ट्राई टू बी लाइक एन एपीजे सर। सो विथ रिस्पेक्ट टू आप जिसको भी देखते हो, विथ रिस्पेक्ट टू आप जिसके देखते हो, जिसके जैसा, जिसको जिससे आप कंपेयर करते हो, हमेशा उसको आप आगे रखते हो और जिसको आप कंपेयर कर रहे हो उसको थोड़ा सा पीछे रखते हो, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। विथ रिस्पेक्ट टू, ये आपको याद रखने का तरीका है। अगर आपको मीडियम से लिखना है, अगर आपने मीडियम में ऐसा कुछ लिखा है, तो आपको ये बात सिंपली क्लियर करना है, ये बात समझ में आनी चाहिए कि वी आर कंपेयरिंग सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। दिस इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और जिससे आप कंपेयर कर रहे होते हो ना, उसकी वेलोसिटी को हमेशा आप ऊपर रखते हो। जैसे यहाँ पर हम एयर से या वैक्यूम से कंपेयर कर रहे थे तो वैक्यूम ऊपर था, मीडियम नीचे था। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम। ये भी दबा। सो दिस म्यू को पढ़ने का एक तरीका है, यू ऑलवेज जिसके रिस्पेक्ट में आप देखते हो उसको आप आगे रखते हो। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिस्पेक्ट देना है जिसके कंपैरिजन में, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसको रिस्पेक्ट देना है। जब आप खुद को किसी बड़े इंसान से कंपेयर करते हो आप उसको रिस्पेक्ट देते हो। एंड यू शुड ऑलवेज कंपेयर योरसेल्फ विद द बिगर वन। स्मॉलर वन से कभी कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, दैट्स वेरी बैड। सो जिससे भी आप कंपेयर करोगे उसको आप रिस्पेक्ट टू दोगे, रिस्पेक्ट टू। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पार्ट इज रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा बताओ जरा? सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम। और जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो उसकी वेलोसिटी को हमेशा ऊपर रखोगे। कीप इट इन माइंड, उसकी वेलोसिटी को आप हमेशा ऊपर रखोगे। अगर ऐसा कुछ दिया है इसका मतलब क्या है बताओ जरा? इसका मतलब क्या है? वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, सॉरी एग्जैक्टली, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ फर्स्ट रिस्पेक्ट टू मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। सेकंड मीडियम। ये चीज आपके सामने आएगी, आपको सीधा वो μ1 2 या μ2 1 दे देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किसको आपको रिस्पेक्ट देना है, किसकी वेलोसिटी को आपको ऊपर रखना है, किसकी वेलोसिटी को आपको नीचे रखना है। मैम इधर v2 by v1 आएगा ना यहाँ पे ना? हाँ, v2 by v1 है। जिसको आप रिस्पेक्ट दोगे उसका वेलोसिटी को आप ऊपर रखोगे, वो हमेशा हायर प्रायोरिटी पे आएगा। वैक्यूम को आप रिस्पेक्ट देते हो क्योंकि वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा होती है तो वो ऊपर होता है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। समझ में आ रहा है? दिस इज द वे टू डिफाइन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शॉर्ट एक रिवीजन ले रही हूँ पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ध्यान से समझते जाओ, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे सम्स में।
सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर शॉर्ट वे में किसी बच्चे को बताना है तो सिंपली बोल देने का आपका मीडियम कितना अलाउ कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को पास करने के लिए। अपोज कर रहा है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, अपोज नहीं कर पा रहा है उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जैसे कि सौरभ ने बताया कि मैम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड इन वैक्यूम और स्पीड इन वन मीडियम टू द स्पीड इन अनदर मीडियम। सो अगर वैक्यूम के कंपेयर में कर रहे हैं तो इट इज C/V। ओके, दूसरी बात हमने पढ़ी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कहीं ना कहीं वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। बहुत बड़ा साइज है तो ज्यादा अपोज नहीं कर पाएगा मीडियम, ज्यादा अपोज नहीं कर पाएगा तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी मतलब म्यू की वैल्यू ऑलमोस्ट बहुत कम होगी, म्यू वैल्यू विल बी लेस क्योंकि अपोजिशन नहीं क्रिएट कर पा रहा। एक ही मीडियम अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए अलग अलग अपोजिशन क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ द साइज। एक ही ऑफिस हर किसी के लिए अलग अलग रूल देता है, 100 के लिए कुछ अलग होगा, मेरे लिए कुछ अलग होगा, आपको कुछ अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो एक ही मीडियम अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग म्यू क्रिएट करता है, कीप इट इन माइंड। इसीलिए म्यू कलर के हिसाब से चेंज होता है। ओके, थर्ड वन, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप देखे, एक तो रिलेटिव और दूसरा एब्सोल्यूट। रिलेटिव जो होता है एक मीडियम से आप दूसरे मीडियम को कंपेयर करते हो, यू कंपेयर वन मीडियम विद अनदर मीडियम, उसको मोस्टली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एब्सोल्यूट वो नॉर्मली कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं एक ही साइड लिख के, या तो दोनों साइड लिखते हैं तो एक साइड में वो एयर लिख देते हैं। सो जब एक मीडियम की वेलोसिटी को दूसरे मीडियम की वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं वी से दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब वहीं पर हम उसको वैक्यूम से कंपेयर करते हैं वी से इट इज एन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको हमेशा वैल्यू देनी है, उसको हमेशा आगे रखना है। सो दिस सिंपली मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। और जिसको रिस्पेक्ट दोगे उसकी वेलोसिटी को हमेशा ऊपर रखोगे। यहाँ पे वेलोसिटी विल बी v1 by v2, यहाँ पे v2 by v1। होप यू आर क्लियर विद द थिंग, समझा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? शुड आई गो अहेड? मैम वो जो म्यू है यहाँ पर मैम वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए डिफाइन है क्या? किसी भी मीडियम के लिए डिफाइंड है। म्यू तो हर किसी के लिए डिफाइंड होता है, वाटर, ग्लास, सॉलिड, हर चीज के लिए म्यू होता है। ऐसा कुछ नहीं है ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए। बट यही बात है कि ट्रांसपेरेंसी होगी तो इजीली लाइट प्रोपोगेट हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ओपेक होगी तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। पर कुछ अमाउंट तो फिर भी अंदर जाने वाला है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज प्योर रिफ्लेक्शन और प्योर रिफ्रैक्शन, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। कुछ अमाउंट हमेशा, कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों क्रिएट करने वाला है। पानी में तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो एक चीज, अगर कंक्रीट का वॉल है और अगर वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है मतलब कुछ अमाउंट ऑफ लाइट वॉल के अंदर भी गई है बट रेशियो इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल। आपका मैक्सिमम अमाउंट रिफ्लेक्ट हुआ है तो आप हमेशा क्या नेट देखते हो ना, व्हेन यू गो फॉर समथिंग यू ऑलवेज गो फॉर नेट। तो नेट रिजल्टेंट आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा है तो आप बोलते हो कि ओके इट इज एन रिफ्लेक्शन, बट सम अमाउंट तो लॉस होना ही होना है। समझ में आ रहा है? हाँ मिस। ओके लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड विद द न्यू टॉपिक। अभी तक सबका बेसिक्स यहाँ तक क्लियर हुआ है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ कैन यू डिफाइन, हाउ कैन यू राइट? कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा आगे जाए, ठीक है। अब हम रियल चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। जो आपका चैप्टर है ये सब तो आपके बेसिक्स है जिसकी मुझे आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको वो सारी चीजें डिफाइन करवाई और समझाई। ओके लेट्स गो अहेड विद द चैप्टर नाउ, दैट इज नेचर ऑफ लाइट। जब इन लाइट के बारे में डिस्कवरी होनी शुरू हुई एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड टू नो कि ये एग्जैक्टली है क्या, ये जो लाइट जिसको हम बोल रहे हैं इसका नेचर क्या है, ये पार्टिकल है, ये वेव है, या ये कुछ अलग चीज है, ये क्या चीज है? ओके उनको किसी को भी इसका नेचर समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज दिस, वी नीड टू स्टार्ट डिफाइनिंग दिस। इस लाइट के बारे में बहुत कुछ समझना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली क्या चीज से बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, इसका क्या फिनोमिना है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि जब रिसर्च चालू हुआ न्यूटन के टाइम पे दे वर वेरी ईगर टू नो अबाउट दिस यूनिवर्स, अबाउट दिस वर्ल्ड। न्यूटोनियन मैकेनिक्स ने बहुत सी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन भी किया,
बट आगे जाके एज आई सेड कि स्पीड ऑफ लाइट पे जाने के बाद न्यूटोनियन मैकेनिक्स बहुत जगह पे रॉन्ग प्रूफ हो गई, जिसकी वजह से हमको आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ काम करना पड़ा, क्वांटम मैकेनिक्स के साथ काम करना पड़ा। बट स्टिल न्यूटन was one of them जिसने इसके बारे में भी डिस्कवरी करना शुरू की, जहां पर उसने ट्राई किया कि उसका जो फिनोमिना, जो अपनी वो रियल लाइफ में जो फिनोमिना, जो अपने एक हायर स्केल पे जो फिनोमिना वो यूज कर रहा था, पॉइंट मास, ये वो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, वो सारी चीजें वो इस पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। और वो ये देख रहा था कि इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद ये लाइट के ऊपर अप्लाई, क्या ये फिनोमिना इस लाइट पे भी अप्लाई होता है क्या। बट द नेम ऑफ द थियरी जो उसने स्लाइड को पढ़ते हुए, इसके नेचर को पढ़ते हुए दी, ओके, नो इट डज नॉट हैव अ स्पेशल रोल, क्योंकि वो रॉन्ग प्रूव हो गया। न्यूटन का कोई भी थियरी, वेट फॉर अ व्हाइल, न्यूटन का कोई भी थियरी स्पीड ऑफ लाइट पे जाके ऑलमोस्ट रॉन्ग प्रूव हो जाता है। बोलो। हम लोग न्यूटन की ये सब थियरीज पढ़ रहे हैं, मैम न्यूटन लोग क्या पढ़ते होंगे? न्यूटन लोग रिसर्च करते होंगे। सी नहीं, आप जब जो पढ़ बचपन रहे हो, छोटे आप थे, उससे तुझे क्या करना है आयुष? नहीं मतलब उसमें बस कौन सा फिजिक्स था? बहुत सारे फिजिक्स था, उसमें क्या है, उसी वक्त तो सारी डिस्कवरी शुरू हुई थी। आप कोई भी डिस्कवरी, आप बोलते हो मिस हमें ये रॉन्ग चीज क्यों पढ़ाया गया, क्यों पढ़ा रहे हो? कोई भी डिस्कवरी करने के लिए आपको उसके बेसिक्स को तो पढ़ना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा होगा उनके टाइम में, धीरे धीरे उन लोगों ने वो सारी चीजें पढ़ी, उनको सही नहीं लगी, उन्होंने रिसर्च करना न्यूटन शुरू किया। ने सारी चीजों को कंक्लूड करके रिजल्ट्स निकाले ना मैम। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। न्यूटन की लाइफ में नहीं जाते, बेचारा मर चुका है, क्यों परेशान करना है उसे। चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड। जो नेचर, लाइट के नेचर को पढ़ने की जो सबसे पहली थियरी न्यूटन ने निकाली, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस्कुलर थियरी। बताती हूँ क्या है, जरा सा पेशेंस रखो। दैट इज corpuscular nature and this theory is called as corpuscular theory. अब इस थियरी का जो स्टार्टिंग था वो सबसे पहले रेन डेस्कार्ट ने किया था। He's a physicist. रेन डेस्कार्ट ने इसका रेन डेकार्ट्स ने इस थियरी को का स्टार्ट किया था। मतलब पहला डिस्कवरी यहाँ से कुछ शुरू हुआ, इस पर्सन ने शुरू किया लाइट के बारे में पढ़ना। He was the one जिसने पढ़ना स्टार्ट किया लाइट के बारे में, उसके नेचर के बारे में। और उसने क्या बोला, इस डेकार्ट्स ने बोला कि ये जो लाइट है ना, ये पार्टिकल है। दिस लाइट इज अ पार्टिकल, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। और इसी थियरी को उठाते हुए न्यूटन ने अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की। सो द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड वाज डेकार्ट्स, जिसने ये बोला कि लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, लाइट होना हो एक पार्टिकल है। और इसी की थियरी को आगे उठाते हुए न्यूटन ने इसके बारे में डिस्कवरी करना शुरू किया, उसके रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, उसने क्या क्या डिस्कवर किया और उसने क्या क्या बोला, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। और उस थियरी को, इस न्यूटन ने जो थियरी निकाली, उस थियरी को कॉर्पस्कुलर थियरी बोलना स्टार्ट किया गया। दिस थियरी इज नोन एज कॉर्पस्कुलर थियरी। सबसे पहली थियरी थी लाइट के लिए, दिस थियरी इज नोन एज कॉर्पस्कुलर थियरी। सो सबसे पहले लाइट की स्टडी स्टार्ट की वो डेकार्ट्स ने की। डेकार्ट्स ने बोला कि दिस लाइट इज अ पार्टिकल, ये जो लाइट है ये पार्टिकल है। उस थियरी को उठाते हुए न्यूटन ने अपनी एक थियरी जनरेट की, जिसको उसने कॉर्पस्कुलर थियरी नाम दिया। क्या डिस्कवरीज की उसने, क्या बताया, जरा देखते हैं। उसने क्या बोला कि ये लाइट जो है ना, ये जो लाइट है, ये जो लाइट हम बोल रहे हैं, ये लाइट जो है ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, they are made up of very small particles which are hard, elastic and massless. इनको मास नहीं है। इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट दिस इज व्हाट द न्यूटन एक्सप्लेन्ड अबाउट द स्मॉल पार्टिकल व्हिच इज लाइट मेड अप ऑफ। उसने बोला कि वो हार्ड है, इलास्टिक है और मासलेस है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन बाय न्यूटन। और न्यूटन ने बोला कि आगे आगे जाके मैं ये प्रूव करने वाला हूँ कि why this reflection refraction occurs। नेक्स्ट उसने क्या बोला कि ये जो पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल, ये जो सोर्स ऑफ, अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट क्या करती है, कॉर्पसल्स, इस पार्टिकल को उसने नाम दिया कॉर्पसल्स, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉर्पसल्स नेचर और कॉर्पसल्स थियरी। ये जो सोर्स ऑफ लाइट होती है, ये कॉर्पसल्स को एमिट करती है।
ये कॉर्पसेल्स जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं विच आर हार्ड, इलास्टिक एंड मासलेस. ओके नाउ, और उसने क्या बोला कि ये जो कॉर्पसेल्स होता है ना, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं. दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो सीधा 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 ये कॉर्पसेल्स आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं. दिस कॉर्पसेल्स आर स्मॉल पार्टिकल्स which are made up of which are hard, elastic and massless. और ये एक स्ट्रेट लाइन में चलते जाते हैं अगर बाहर से कोई इनको धक्का ना मारे, कोई बाहर से फोर्स ना लगाए. उसके बाद उसने क्या बोला कि अगर ये किसी रिफ्लेक्टिंग मीडियम को मिलते हैं, जाकर टकराते हैं, if they strike the reflecting medium, तो because of the elastic collision, जैसे कि अब ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, ये एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, इलास्टिक कोलिशन की वजह से there happens an elastic collision, there is no loss in the energy, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं. सोर्स ऑफ लाइट मतलब है कि जो सोर्स लाइट क्रिएट करने वाला है. फॉर एग्जांपल सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, योर टॉर्च इज अ सोर्स ऑफ लाइट, योर बल्ब इज अ सोर्स ऑफ लाइट. तो एक सोर्स ऑफ लाइट लेके उसने लाइट पास की और बोला अभी तक मैं फोटोन पे नहीं आ रही हूँ. फोटोन जैसे तब कुछ क्रिएट नहीं हुआ था, हम लोग स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं. फोटोन जैसे कोई डिस्कवरी स्टार्टिंग में नहीं हुई थी. स्टार्टिंग में लाइट के पार्टिकल्स को कॉर्पसेल्स बोला गया था. हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं. प्लीज आगे की चीजों को अभी मत लेकर आओ जब तक मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मतलब कुछ है आगे. सो न्यूटन ने रेन डेकार्ट्स की थियरी को उठाया. रेन डेकार्ट्स ने बोला लाइट इज अ पार्टिकल. न्यूटन ने उस पार्टिकल वर्ड को यूज करके अपनी एक कॉर्पस्कुलर थियरी रेडी की. उसमें उसने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच इज हार्ड, इलास्टिक एंड मासलेस इन नेचर. उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को उसने नाम दिया कॉर्पसेल्स. उसने बोला कि ये जो छोटे छोटे कॉर्पसेल्स है, ये एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं. अगर कोई उनको बाहर से धक्का ना मारे तो दे ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. उससे रिफ्लेक्टिंग फिनोमिना समझाया कि रिफ्लेक्शन क्यों होता है लाइट का किसी चीज पे टकराने के बाद, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कॉर्पसेल्स है विच आर हार्ड, इलास्टिक एंड मासलेस, वो जब इस वॉल से टकराते हैं देयर हैपेंस एन इलास्टिक कोलिशन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, जिससे क्या होता है कि सारे के सारे कॉर्पसेल्स इससे टकरा कर रिटर्न बैक हो जाते हैं. देयर हैपेंस एन इलास्टिक कोलिशन, देयर इज नो लॉस इन द एनर्जी. ओके नेक्स्ट उसने रिफ्रैक्शन का फिनोमिना किस तरीके से समझाया, तेरा ध्यान से समझना. रिफ्लेक्शन का फिनोमिना तो समझ गया कि ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस है वो क्या करता है, धक्का मार देता है आपके कॉर्पसेल्स को, और धक्का मारने की वजह से देयर हैपेंस एन इलास्टिक कोलिशन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन. रिफ्लेक्शन के बारे में उसने किस तरीके से समझाया. लोगों ने बोला कि ठीक है, ये तो समझ गया कि ये कॉर्पसेल्स है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, स्ट्राइक हो रहा है, रिटर्न बैक आ रहा है, देयर इज एन इलास्टिक कोलिशन, ये एक्सेप्टेड हो गया. जब रिफ्रैक्शन का फिनोमिना उसने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, उसने क्या एक्सप्लेन किया जरा ध्यान से समझो. उसने बोला कि जब ये जो छोटे छोटे कॉर्पसेल्स हैं, ये जब छोटे छोटे कॉर्पसेल्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, ये जो अंदर का ये जो सब्सटेंस जिस चीज से बना हुआ है, दे अट्रैक्ट द कॉर्पसेल्स. इन कॉर्पसेल्स को ये जो अंदर का मीडियम है, फॉर एग्जांपल एयर से ग्लास में जा रहा है, लेट अस कंसीडर, ठीक है, तो ये जो ग्लास के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, आयंस है ना, ये इस कॉर्पसेल्स को अट्रैक्ट करते हैं. ऐसा बोला उसने कि इट अट्रैक्ट्स द कॉर्पसेल्स. देयर इज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द ग्लास मॉलिक्यूल्स एंड दिस लाइट, ऐसा उसने एक्सप्लेन किया. बट उस चीज से ये हुआ कि जब आप किसी चीज को अट्रैक्ट करते हो तो उसकी स्पीड तो बढ़ जाती है. व्हेन यू अट्रैक्ट समथिंग, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, ना कि अपोजिशन क्रिएट होता है. तो उसके फिनोमिना के हिसाब से डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा थी. उसके फिनोमिना के हिसाब से लाइट वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम वाज हाई, ऐसा उसका बोलना था कि डेंसर मीडियम में बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, ये जो ग्लास के छोटे मॉलिक्यूल ये ग्लास अटैक कर रहे हैं, तो उसकी जो फिनोमिना है ये एक्सप्लेन करता है कि डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी. बट हमको तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज रॉन्ग प्रूफ हुई, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती जाती है. ये चीज अभी हमने डिस्कशन में पढ़ा कि लाइट की वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द मीडियम अपोजिशन वो कम होती जाती है. सो दिस पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने का जो फंडा उसने यूज किया वो आपके एक्सपेरिमेंटल से मैच नहीं हुआ, जहां पर उसकी जो थियोरी है वो रॉन्ग प्रूफ हो गई कि नो यू आर सेइंग समथिंग रॉन्ग एंड इट वाज नॉट एक्सेप्टेड. ओके, इवन उसने एक और फिनोमिना समझाया कि ये जो हम साइज देखते हैं ना, जो हम कलर्स देखते हैं, द कलर्स वी ऑब्जर्व, रेड कलर, ग्रीन कलर, उसने बोला कि ये कॉर्पसेल्स के साइज की वजह से होता है.
कॉर्पसल्स का साइज डिफाइन करता है कि उसका कलर क्या होगा। साइज बड़ा है तो रेड कलर दिखेगा, साइज छोटा है तो अलग कलर दिखेगा। तो कलर जो होता है वो साइज ऑफ द कॉर्पसल्स पे डिपेंड करता है। दिस इज व्हाट ही एक्सप्लेन विद दिस थियरी। मिस एक डाउट था। बोलो। मैम जब ये न्यूटन ने जब भी अपना किया एक्सपेरिमेंट कि मतलब लाइट जब एक मीडियम से किसी और मीडियम में जाती है तो मैम वो तो उस टाइम पर ही उसने जो दी थी अपनी थ्योरी वो तो रॉन्ग। क्या समझा नहीं मुझे। हेलो मिस। हाँ बोलो बोलो सौरभ। तो मैम अगर जो उसने माना था कि ये जो लाइट के पार्टिकल से मतलब लाइट एक पार्टिकल से बना हुआ है तो मैम अगर वो पार्टिकल है तो फिर वो फिर क्या आगे? हाँ मिस फिर वो एक मीडियम से किसी और मीडियम में कैसे जाएंगे? उसकी थ्योरी तो वहीं पर रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी ना। नहीं, उसने क्या बोला कि पार्टिकल्स है ना, तो ये उसने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो पार्टिकल्स है ना, मेरे छोटे छोटे पार्टिकल्स, मेरे जो अंदर के ग्लास के पार्टिकल्स है, जो अदर मीडियम के पार्टिकल्स है, वो मेरे छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन, उसने ये एक्सप्लेन किया, वर्ड यूज किया कि वो अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से मेरे पार्टिकल्स उनके अंदर जा रहे हैं। जो आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस में, ये चीज तो ऑलरेडी सारी चीजें प्रूफ हो गई थी कि किसी भी एटम में अंदर बहुत सारे फ्री स्पेसेस होते हैं। अगर आप अपने एक एटम को देखो तो उसके अंदर फ्री स्पेस ज्यादा है एज कंपेयर टू द सब्सटेंस प्रेजेंट। तो उसने बोला कि जो अंदर के आयंस वगैरह है ना, वो मेरे लाइट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए मेरा लाइट अंदर जा पा रहा है। बट लोगों ने बोला कि अट्रैक्शन होने से, उसके फिनोमिना के हिसाब से अट्रैक्शन होने से स्पीड बढ़ना चाहिए था। ओम, दैट वाज अ रॉन्ग थियरी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। उसने समझाने के लिए ये टर्म यूज किया, इसीलिए तो उसकी थियरी रॉन्ग हुई कि ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ मैं समझा भी समझा। उस वक्त फिजिक्स शुरू हो रहा था लाइट का, तो वो जो बोल रहा था वो लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे। दिस इज अ स्टार्टिंग थियरी जिसमें उसको लास्ट स्टेटमेंट पे उसने रेक्स एक्सपेरिमेंट में ही वो रॉन्ग प्रूफ हो गया। रिफ्रैक्शन, मैंने तो कहा ना कि रिफ्रैक्शन की थियरी पे ही वो रॉन्ग प्रूफ हो गया, क्योंकि अट्रैक्शन जैसा कोई फिनोमिना नहीं था। अट्रैक्शन होता तो किसी चीज को जब आप अट्रैक्ट करते हो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, जो कि एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग प्रूफ हुआ कि डेंसर मीडियम में तो स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका अट्रैक्शन वाला फिनोमिना रॉन्ग हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। दे वर ट्राइंग डिफरेंट वेज टू डिफाइन समथिंग। आप जब किसी चीज की शुरुआत करते हो तो जरूरी नहीं कि वो करेक्ट ही हो, बट आप एक तरीका स्टार्ट करते हो ना। ओके, सो व्हाट आर द, एक शॉर्ट ले रही हूँ न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थियरी का। दिस आर इंपॉर्टेंट, आपको आता है, राइट डाउन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। तो एक शॉर्ट में रिविजन ले रही हूँ कि व्हाट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। सबसे पहले आर डेकार्ट्स ने इसकी थियरी स्टार्ट की थी, जिसमें उसने बोला था कि लाइट इज अ पार्टिकल। दूसरा, इसी थियरी को न्यूटन ने अडॉप्ट किया और अपनी कॉर्पस्कुलर थियरी का स्टार्ट किया। उसने बोला कि मेरा जो लाइट है वो एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल जो है ये हार्ड है, इलास्टिक है नेचर के, एंड मासलेस है, दे आर मासलेस। उसने बोला कि अगर एक आपने लाइट का सोर्स लिया जिसमें से आप लाइट जनरेट करने वाले हो, वो क्या करेगा, कॉर्पसल्स को जनरेट करेगा, एमिट करेगा। दिस कॉर्पसल्स आर योर पार्टिकल्स। उसने नाम दिया इन पार्टिकल्स को कॉर्पसल्स। बोला कि वो उस कॉर्पसल्स को जनरेट करेगा, और ये जो कॉर्पसल्स, ये जो पार्टिकल जनरेट होंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे जब तक बाहर से कोई इनको धक्का नहीं मार देता। जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता, दे विल ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ये इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था। फोर्थ में उसने बोला, उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया कि अगर कोई रिफ्लेक्टिंग मीडियम से मेरा कॉर्पसल्स जाके टकराते हैं, टू अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम, अगर मेरे कॉर्पसल्स जाकर टकराते हैं तो देयर विल बी अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। इसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। उसके बाद जब उसने रिफ्रैक्शन की फिनोमिना समझाई, यहाँ पर उसने मिस्टेक की है। उसने कहा कि कोई, जब ये जो मेरे कॉर्पसल्स है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इसलिए जा पाते हैं कि दूसरे मीडियम के जो पार्टिकल्स है, जो आयंस है, मीडियम के जो आयंस है, वो मेरे कॉर्पसल्स को अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट देम। सो अकॉर्डिंग टू इसकी थियरी, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम वाज हाई, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम वाज हाई, जो कि एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग प्रूव हुआ। एक्सपेरिमेंट की ये देखा गया कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे कम हो जाती है, मींस इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, सबसे कम नहीं, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। डेंसिटी जैसे बढ़ती जाती है, डेंसर मीडियम
डेंस होता जाता है मीडियम, उसका आपकी स्पीड की लाइट को अपोजिशन मिलने की वजह से इट गोज ऑन डिक्रीज। सो एक्सपेरिमेंटली इसका ये रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना रॉन्ग हो गया। लास्ट उसने एक स्टेटमेंट दिया था दैट कॉर्पसल्स के साइज पे आपका लाइट का कलर डिपेंड करता है। दिस वाज द लास्ट स्टेटमेंट गिवन बाय न्यूटन। सो दिस इज व्हाट corpuscular theory explains. This was all about corpuscular theory. किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? और should I stop? लास्ट स्टेटमेंट तो वाज ट्रू ना? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उसका सब कुछ रॉन्ग हुआ। हाँ। कोई भी फिनोमेना पूरी तरीके से रॉन्ग नहीं हुआ। इसने जो रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट पढ़ाया थी वो कहीं ना कहीं हर जगह वो अपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यूज करके वो चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। आगे आप जाके पढ़ोगे कि न्यूटन की थियरी एट द स्पीड ऑफ लाइट, न्यूटन की थियरी एट द स्पीड ऑफ लाइट में बहुत जगह पे रॉन्ग प्रूफ हो जाती है। इसीलिए तो हमको रिलेटिविटी के कंसेप्ट को यूज करना पड़ता है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ नेचर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेचर में सिंस आपको आगे जाके पता चलेगा कि लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर, लाइट का पार्टिकल नेचर है, इट्स अ ड्यूअल इन नेचर। वो पार्टिकल की तरह बिहेव भी करता है और वेव की तरह। तो कुछ तो पार्टिकल नेचर को फॉलो करेगा ही ना, कुछ चीजें तो पार्टिकल नेचर की फॉलो करने ही वाला है। करेक्ट से मैम बस इतना ही बताया कि वेव एक पार्टिकल है, सॉरी लाइट एक पार्टिकल नहीं है, सॉरी लाइट एक पार्टिकल है। उसने इस कंसीडरेशन को दिमाग में लेके आगे की चीजें समझाई, दैट्स ऑल। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर। अच्छा मैम सुनो ना, वेट फॉर अ व्हाइल। प्रतिभा मैम, हेलो। हाँ ये लोग